मैम क्लासेस में सबसे अच्छी बात थी पीपीटीज। वो बहुत मतलब उनसे आसानी से याद हो जा रहा था, क्योंकि मेरे तो थोड़ी याद करने वाली प्रॉब्लम है। वो भी नहीं हुई थी इतनी ज्यादा, और समझ भी अच्छा ही आया था। Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, I can hear you, Mahesh. Please बोलिए। Ma'am, no, I'm just checking is my mic working or not, ma'am. Okay, okay, okay. So you have already taken heard about the review from the Tanishq of the last batch. So are you interested to watch Ma'am, this? I'm interested to join, ma'am, but then I don't know, I don't know like how the fee structure is and like how to join this thing, like join the classes. Okay, okay. So let me tell you the fee structure. If you are going to opt for the complete batch of CDS IMA, then it is going to charge you 4,000 rupees. And if you are going to take only for the GS and English, then it is going to charge you rupees 3,000. And if you are going to take individually either of the GS or English, then it is going to charge you rupees 2,000. Okay, ma'am, when do you think is the best time to take the NDA coaching, ma'am? Because just now I passed my 10th, like I completed my 10th and I'm going to 11th, ma'am. Okay, so you are about to go in 11th. Yes. So I'll suggest key, as I've also cleared my ND examination, so I'll suggest key. Please, Shekhar, please stop writing from this whiteboard. I'll suggest कि आप पहले आपका जो टाइम पीरियड होता है स्पेशली समर ब्रेक वाला होता है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करंट अफेयर्स हाउ यू आर गोइंग टू आर्टिकुलेट Ma'am, योर थिंग्स. ma'am, Yes, please. ma'am, I'm from like South India, ma'am, so I'm not that much good in Hindi, ma'am. So yeah, English. Yes, that's why I'm speaking in English. I came to know about from your accent only. Yes. So, like, as you are already from the south, your English will be definitely good. But I'll suggest one thing. It's not something कि अगर आप if it is your English is good, then that means your communication is good. Basically, what exactly your communication is, it talks about it is having two components. One is the verbal communication, and second one is the non-verbal communication. Verbal communication is what exactly you're speaking, and non-verbal communication is how you are speaking. That what are your face expression, what about your hand gestures. So I'll suggest you are having a time period of 2 years, so start working on your communication, both verbal part as well as non-verbal part, which includes your articulation, the way of speaking, your body language. As we have seen, whenever we are watching someone else, how they are speaking, what we interpret the first thing is what is his or her expression, how he is doing the voice modulation, how he is taking the pauses, because that matters more. Jo, the things which you are presenting outside of your, apart from your verbal communication, that gives better impression as compared to what exactly you're speaking. As you have said in your school community hall as well, if someone is coming to us to give speeches, we don't listen what exactly they are speaking, rather how he is standing, how she is standing, how he is making the hand movements. Am I right? Yes, ma'am. So this is the thing. If you are going to work on your communication skills, don't. And if you are asking even someone how to improve my English or communication skills, then don't ask about only that. How should I speak? What should be my fluency? What should be my accent? You have to ask them also how to articulate the things, how to bring voice modulation, how to bring this like livelity while the speaking. It should not look like something that I'm just reading a text. Like if you are listening to, I haven't switched on my camera because it will hamper my network because of that. So if you are listening, so you are able to know that how many times I'm taking the pauses, and what is my voice tone, how I'm modulating it, where I'm emphasizing more and more, where I'm lowering my voice. Are you able to understand this particular thing? Yes, ma'am. So this is what matters more in the communication, apart from your what exactly you are speaking, what words you are using. So if you are going to appear for your ND examination, so start working on your mathematics from the day one itself, because like I am from the non-maths background. I was not having mathematics in my 11th and 12th standard, though I have cleared my ND examination. Like Minu has also mentioned कि मैम मेरा maths की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. तो मीनू आई सजेस्ट यू. मैम हाँ. मैम एनडीए का रिजल्ट आ गया क्या? नहीं. Yes, ma'am has
कब? कब आया? लाइक मैंने मैम चेक अभी किया। जस्ट अभी जस्ट नाउ। ओके ओके, विल चेक ना। Yes, it is हमारा कब out. आएगा? So, if you're from non-maths, like being a girl who is from non-maths background, still I can clear my NDA examination, then why can't you? So, if you are fond, like अगर आपको डर है कि I'm not able, I'm not that much good in my maths, then only focus on the mathematics of 11th standard. 11th की maths enough है. From that itself, you can clear your cutoff and you can even score good marks. Above 100, you can easily score. But the thing is, कि whatever topics you are taking, 13 to 14 chapters are enough for that particular thing. And if you want more detailed guidance about like strategy, that what chapter should I focus and how should I maintain this thing, then I can take a session about that as well. That I can clear your doubts about your strategy and how to manage things along with your school or college for your both the examination NDA or CDS. So, Mahesh, start working on your English, current affairs, and your math portion. Yes, ma'am. Like, is there any verbal and non-verbal classes you're teaching, ma'am? Basically, I'm not taking any personality development classes, but what I do is like if you're having any doubt related to all these things, I can take 10 to 15 minutes in starting off my classes to explain all these particular things. Oh, okay. Like in my classes also, in my batch also, I do this thing only before teaching the exact topic. Take the starting 10 to 15 minutes to explain something which is going in the current affairs or something which is related to your life or any other doubt. ओके मैम। So shall we begin with polity? यस मैम। पॉलिटी से किस किस को डर लगता है कि आर्टिकल्स याद नहीं होते, ये याद नहीं होता, वो याद नहीं होता? जस्ट कंफ्यूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स। तनिष, तुम्हें याद होने लग गया? हाँ मैम अब तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। ओके ओके, सो मीनू विल स्टे कनेक्टेड विद मी. आपकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका जो कंफ्यूजन रहता है ये सारा का सारा हट जाएगा. जैसे तनिष ने मुझे डे 1 पे बोला था, मैम मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, मैं भूल जाता हूँ, सब कुछ कंफ्यूज कर देता हूँ एक दूसरे के साथ. एंड टुडे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू who had my student since December. Ma'am? हाँ. Ma'am, like in the SSB I mean, like in More Academy, they kept like one poster, right, ma'am? Like one sir was there, and beside that, they offered a course in which they said that like all the speaking, everything would be there. Like for the That is SSB, everything. BOCC course. That is BOCC course, Basic Officers Communication course. Ah, That is of 3 months of duration. You can take that course as well for your communication. yes, ma'am. Like how to take that, ma'am? Like, is there any link where we can pay and we can do it? There is a number mentioned in that. You can drop a message to that, and they'll direct you for the further proceedings. Oh, ma'am, when I called them, ma'am, they said that everything will be in the Telegram channel, ma'am. That's why. Okay, I'll give you the number at the end. You can call at that particular number, or you can drop a message. Okay, ma'am. So, शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. This is something from where our polity starts. So, I would like to ask you what exactly the constitution is. Does anyone know? Or why do we study polity? Anyone? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न लेआउट है जिससे हमें रूल्स और रेगुलेशंस है होते हैं इसके अंदर, जिससे हमें पता चल सकता है मतलब हमें किस तरीके से रेगुलेट करना अपने होल नेशन को। Just give me a minute. I'll be back. And why do we study polity? Ma'am, in this class, we'll be learning about civics, right, ma'am? Yes, today in this session we are going to learn about the polity, which is going to cover your 10 to 12 question in CDS examination, or 6 to 7 questions in your NDA examination.
Oh, mom, like how much is this, mom? Like, or the like, how much is this class? Like the course of this one, like the civics. Um, it can be covered in 25 to 30 classes. Uh, okay, mom, like how is the fee structure for this, mom? We'll clear all these doubts at the end of the session. Okay, mom. Okay. So I'm starting with polity. So very first question कि हम polity पढ़ते ही क्यों हैं? Why do we study polity? तो बेसिकली पॉलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली हैविंग आर्टिकल्स और वी आर ओनली हैविंग शेड्यूल कि आपको रटना पड़ रहा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग 470 आर्टिकल्स, वी आर हैविंग 12 शेड्यूल्स और वी आर हैविंग 25 पार्ट्स. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. पॉलिटी वो है, वो चीज है जिसके अंदर ये जो आर्टिकल्स होते हैं, जो शेड्यूल्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एक जो देश है वो किस बेसिस पे गवर्न होने वाला है, इसमें लॉ कौन बनाएगा, राइट्स किसको मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी जो यहाँ पे पावर होती है, इस पावर का मालिक कौन है. So this is the reason why we study about the polity, so that we can come to know about our rights, what are our personal rights, and if we are stuck in somewhere, then how we can use our own rights or the constitution, the rules to save ourselves or to safeguard our country's sovereignty or each and everything. So there are two things. First is the rule of the person and second one is rule of law. तो रूल ऑफ पर्सन क्या होता है? जैसे पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, किंग ने बोल दिया कि ये लॉ है तो वही लॉ बन जाता था. मतलब चाहे मोनार्की हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, जैसे चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है एंड ब्रिटेन के अंदर मोनार्की है. तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता है यहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है, अगर रूलर अच्छा है तो पब्लिक सेफ होगी, अगर रूलर क्रूअल निकला तो पब्लिक हेल्पलेस हो जाती है. जैसे हिटलर के टाइम पे हुआ था. हिटलर जैसे एग्जाम्पल्स दुनिया के सामने आए थे कि हाउ डिक्टेटरशिप इज नॉट गुड. वेरएज अगर हम चाइना का देखें, सो चाइना के अंदर एट प्रेजेंट डिक्टेटरशिप है, बट स्टिल चाइना इज अ लीडिंग कंट्री. बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफी हेल्पलेस नहीं है. दे आर गेटिंग ऑल देयर बेसिक राइट्स. सो देर आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर वी कैन कम टू नो दैट डिक्टेटरशिप अच्छी भी है और बुरी भी है. तो लेकिन इंडिया ने डिसाइड क्या करा था कि हम किसी एक इंसान को सुप्रीम नहीं बनाने वाले हैं. जैसे ही ब्रिटिशर्स गए थे, आई लेट यू नो कंप्लीट, मैं आपको एनालॉजी पढ़ाऊंगी कि कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड शुरू हुई थी. तो इंडियंस ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी एक इंसान को सुप्रीम नहीं बनाएंगे. हम किसको सुप्रीम बनाएंगे, हमारे देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा. वो एक किताब सुप्रीम होगी जिसके अंदर 12,000 पेजेस है, जिसके अंदर सारे के सारे लॉज वगैरह लिखे हैं, सारे रूल्स लिखे हैं. उस रूल बुक को हम सुप्रीम बनाने वाले हैं. और वो रूल बुक हमारी एक लाइव बुक होगी. ऐसा नहीं है उस पर लिख दिया और वो एकदम फिक्स हो गया, वो पत्थर की लकीर बन गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो रूल ऑफ पर्सन और रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, हमारा प्रेसिडेंट हो गया, आर्मी ऑफिसर हो गया, या फिर कोई भी कॉमन सिटीजन हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. सब अपने मन मुताबिक नहीं चलेंगे. ऐसा नहीं होगा दैट इफ आई एम द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग देश को चलाऊंगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं अपने रूल्स लेकर आऊंगा. नहीं, हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाली है. इसलिए पॉलिटी मैटर करती है, बिकॉज ये क्या होता है, चाहे हमारे सोल्जर्स हो, चाहे हमारे सिटीजन होते हैं, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं, ये सबके सब क्या, इन सबको क्या मिलने वाला है, सारे के सारे इनकी राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें डिफाइन होने वाली है. तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सिर्फ आपकी जो पॉलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम तक कन्फाइंड नहीं रहती कि आपने रिटन एग्जाम के अंदर पॉलिटी पढ़ लिया एंड यू आर डन फ्रॉम द पॉलिटी. नो. जो हमारा पॉलिटी होता है ये आपका एसएसबी लेक्चरेट के अंदर और ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक एसएसबी लेक्चरेट कार्ड जो होता है, जिसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स मेंशन होते हैं. यूजुअली क्या होता है बेसिकली, तो मतलब जो 70% केसेस के अंदर क्या होता है, हमारे जो 4 टॉपिक्स होते हैं उन में से 3 टॉपिक्स तो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, चौथा टॉपिक हो सकता है हमारा फेवरेट लीडर और समथिंग लाइक दैट. बट जो हमारे 30% केसेस होते हैं, उस 30% केसेस के अंदर हमें बोल देता है एक्सप्लेन डेमोक्रेसी, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड. हमारे पास पॉलिटी से उठा के टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको 3 मिनट की स्पीच देनी होती है. इमेजिन यू आर इन सच अ सिचुएशन की जहां पे आपको तीनों करंट अफेयर्स के टॉपिक्स नहीं पता है. अगर मैं आपको बोलूं ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो आप इसमें मुझे सिर्फ डेफिनेशन दे सकते हो. विल यू बी एबल टू स्पीक 3 इफ यू डोंट नो अबाउट दीज टॉपिक्स? No, ma'am, not right now. अगर
ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देन यू आर ओनली लेफ्ट विद सच एन ऑप्शन, जैसे डेमोक्रेसी का टॉपिक आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक आता है, और यूजुअली पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर 3 में से एक लेक्चरेट कार्ड के ऊपर हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलता है। तो आपकी जो पॉलिटी है लेक्चरेट के अंदर इस तरीके से हेल्प करती है, वेरएज हमारे जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपको जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स पुट फॉरवर्ड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दे दिया कि वुमेन इन आर्म फोर्सेस आ गया, तो वुमेन इन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हमारी पॉलिटी के अंदर काफी सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कुछ प्रोविजंस ऐड हुए हैं। तो देयर यू कैन गिव द फैक्ट, जो आप फैक्ट दे सकते हो, फिगर्स दे सकते हो, जो भी आप लीड चूज कर रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रोमिस करते रहूं, एक्शंस नहीं दिखाऊं, मैं आपको रियल नंबर्स नहीं दिखाऊंगी, तो क्या आपको मेरी बात पे ट्रस्ट होगा? नो। सेम चीज हमारे ग्रुप डिस्कशंस के अंदर होता है कि इमेजिन आपने कोई एक लीड ले ली, लेकिन उस लीड से आप एक ही पॉइंट को घुमाए जा रहे हो या 2 पॉइंट्स को घुमाए जा रहे हो। आप अपनी लीड को सपोर्ट करने के लिए क्या नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, सॉलिड पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कि व्हाई दिस लीड इज राइट एंड व्हाई आई एम चूजिंग दिस पर्टिकुलर लीड। तो उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, प्रोविजन होती हैं, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। So that's why this plays a important role in your lecturate and group discussions. Now let's understand कि हमारे जो, किसी ने कुछ बोला? नो मैम। So now let's understand कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड शुरू कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहली जो डिमांड रखी गई थी वो 1924 में रखी गई थी। बेसिकली जो स्वराज पार्टी थी, विच वाज बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, उन्होंने इसकी डिमांड रखी थी। लेकिन उस 1924 काफी पुराना टाइम था, उस टाइम ब्रिटिशर्स की ज्यादा चलती थी, तो उस डिमांड को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद सबसे पहली जो रखी जाती है वो एम एन रॉय साहब की एंट्री होती है ईयर 1934 के अंदर। तो 1934 के अंदर जब एम एन रॉय सर आते हैं, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे। तो ये क्या थे, उन्होंने सबसे पहली बार आइडिया दिया था कि इंडिया के लिए क्या होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी असेंबली जिसमें इंडियंस खुद बैठकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये पहली फॉर्मल डिमांड थी। इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड जिसको रिकॉग्नाइज करा गया था हमारे इंडियन लीडर्स की तरफ से भी। सबसे पहली डिमांड हमारी एम एन रॉय सर ने पूछी गई है। यहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मल डिमांड डाली थी वो किसने डाली थी। सो इट वॉज डन बाय एम एन रॉय। इसके बाद क्या होता है, 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको ऑफिशियल डिमांड डालती है। 1935 के बाद ईयर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू सर ने क्या किया, डिमांड ऑफिशियली डाली, मतलब आईएनसी के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट दी थी। ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, इंडियंस ही बनाएंगे वाया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंदर कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने की बात समझो कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस क्यों नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर इमेजिन अगर उस टाइम क्या होता है, इंडिया के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्लाइमेट से रिलेटेड ही रूल्स बनाने हैं, लेकिन वो रूल्स ब्रिटिशर्स बना रहे होते। अगर वो रूल्स ब्रिटिशर्स बनाते तो क्या ब्रिटिश का जो वहां पे जो क्लाइमेट है वो तो मेडिटेरियन क्लाइमेट है। अगर आपने ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कॉपन का, तो यू हैव देखा होगा कि मेडिटेरियन टाइप सी क्लाइमेट है वहां पे। लेकिन इंडिया के अंदर मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं है। तो अगर क्लाइमेट रिलेटेड रूल्स ही अगर हमें बनाने हैं तो वो किस बेसिस पे बनेंगे, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या वो इंडियंस की नीड को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है? Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस मैम, नहीं समझ पाएंगे मैम। नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल जो क्लाइमेट से आप रिलेट कर सको। इसी तरीके से अगर हम बाकी लॉज अगर ब्रिटेन बना देता है इंडियंस के लिए, तो पहली बात तो इंडियंस की डिमांड्स ही नहीं समझ पाएंगे वो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसीलिए यहाँ पे नेहरू जी ने प्रेजेंट करा था कि आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, जब आईएनसी ने ऑफिशियल डिमांड डाल दी थी, इसके बाद अब क्या होता है, 1939 के अंदर शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या कोशिश क्या करता है कि हम ब्रिटिशर्स क्या प्लान करते हैं कि हम इंडियंस को बहला फुसलाकर क्या करें, हम इनके डिफेंस से, हमें वॉर के अंदर इनसे हेल्प ले लेते हैं। तो ये कुछ टेक्टिक्स लेके आते हैं। सबसे पहले टेक्टिक लेके आते हैं अगस्त ऑफर की। अगस्त ऑफर में क्या होता है, 1940 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो चल ही रहा होता है। ब्रिटिश को चाहिए था इंडिया का सपोर्ट एज इंडियन सोल्जर्स के बारे में आपने वैसे ही अपन ने काफी सुना होगा।
और यू आर ऑल्सो एस्पायरिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडियन आर्म फोर्सेस, तो उन्हें चाहिए था इंडियन सोल्जर्स का सपोर्ट और रिसोर्सेज भी चाहिए थे। तब उस टाइम के जो वाइसरे थे, वाइसरे लिंग लिथो, वो एक ऑफर लेके आते हैं, प्रपोजल लेके आते हैं, जिसको बोला गया अगस्त ऑफर। ये आया था 8 अगस्त को। अब 8 अगस्त 1940 को आया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का डे 8 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का 8 अक्टूबर है। आई एम आस्किंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। आशियान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त। यस मैम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या ऑफर करा था। सबसे पहली बात तो वॉर के बाद इन्होंने ये चीज बोली थी, मैं साइड में लिख देती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन में नहीं लिख के आई हूँ, कि वॉर के बाद क्या हो जाएगा, इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, उनको चांस दिया जाएगा। जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या होगा, जो, एक सेकेंड, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके अंदर इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेशन क्या करा जाएगा, इंक्रीज करा जाएगा। इसके अलावा आपका जो डोमिनेंट स्टेटस है, ये जो डोमिनेंट स्टेटस, तो ये जो डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा, इसको फ्यूचर के अंदर कंसिडर करेंगे। अब ये जो डोमिनेंट स्टेटस होता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस डोमिनेंट स्टेटस इज, कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है, लिमिटेड फ्रीडम मिलती है, मतलब इंटरनली आपको फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन आपको जो रूल करा जाएगा, वो रूल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे, इंडियंस आपको रूल नहीं करेंगे। जो अल्टीमेट रूल होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा। ये था डोमिनेंट स्टेटस का मतलब। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं मिलने वाली है डोमिनेंट स्टेटस के अंदर। तो यहाँ पे नेहरू जी ने ये बोला है कि डोमिनेंट स्टेटस इज अ डेड एज अ डोर नेल, ये उस दीवार पे एक सिंगल कील की तरह है, जिसकी वजह से उस दीवार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी, तो हमारा अगस्त ऑफर भी रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो होता है 1942 के अंदर आता है, जिसको लेकर आते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब जैसे पहले इंडियंस नहीं पहले फुसले, तो इन्होंने एक और टैक्टिक ट्राई करी कि हम एक और मिशन लेके आ जाते हैं जहां से हम इंडियंस का सपोर्ट गेन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी, तब आपको डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन इस डोमिनेंस स्टेटस के अंदर एक और चीज होगी, दैट इज राइट टू सेकेड फॉर प्रोविंसेस। अब राइट टू सेकेड का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि पूरा एक नेशन है, उस पूरे नेशन के अंदर एक हमारा प्रिंसली स्टेट है। ये प्रिंसली स्टेट क्या होता है, आपने पूरे नेशन के लिए क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन ये एक प्रिंसली स्टेट उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, ये इस पूरे नेशन से अलग हो सकता है, और अलग होने के बाद अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो अगर उस टाइम राइट टू सेकेड अलाउ कर दिया जाता, तो आज के टाइम पे जो इंडिया है, क्या वो इंडिया रहता? नो मैम। नहीं रहता ना। इसीलिए यहाँ पे राइट टू सेकेड को रिजेक्ट कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइट टू सेकेड। और इसके अलावा हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी। इसके अलावा गांधी जी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट दी थी, दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो जाता है, एज वेल एज हमारा जो अगस्त ऑफर होता है, ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इन दोनों के बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन के प्लान के में क्या होता है, ये हमारा फाइनल प्लान था। 1946 आते आते तक ब्रिटिश समझ चुके थे कि अब हम इंडिया को परमानेंटली कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट थे वो हर जगह, क्योंकि 1942 के बाद क्या होता है, जब क्रिप्स मिशन फेल होता है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, वो क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में ही आता है। ये चीज आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, पॉलिटी का पार्ट नहीं है ये।
तो कि अब हमें इंडिया को फ्री तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर हम कंप्लीट रूल नहीं कर सकते, परमानेंटली कंट्रोल करके नहीं रख सकते। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा वीक हो चुका था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को फ्रीडम दी कैसे जाए, और सबसे बड़ा सवाल कि एक यूनाइटेड इंडिया बनेगा या फिर इंडिया डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के लिए, इस कंफ्यूजन के बीच में ब्रिटिश एक और प्लान भेजता है, उस प्लान को हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। अब पहली बात तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये कोई नॉर्मल डेलीगेशन नहीं था, इसके अंदर जो ब्रिटेन के टॉप मिनिस्टर्स थे वो सारे थे। इसके जो मेंबर्स हैं, यहाँ से प्रीवियस एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर से पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसमें से कौन सा इंडिया नहीं आया था। तो यहाँ से 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में: पैट्रिक लॉरेंस, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट; सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हु वाज द प्रेसिडेंट फॉर द बोर्ड ऑफ ट्रेड; एंड एवी अलेक्जेंडर, हु वाज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो ये 3 आए थे, ये इंडिया के अंदर मिशन लेके आते हैं और यहाँ पे सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आए थे कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर असेंबली। तो इसके अंदर पहली बात तो, अब यहाँ पे उस टाइम इंडिया के अंदर क्या होता था, अगर दिस इज अगेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि उस टाइम हमारे पास 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी। फर्स्ट वाज आईएनसी एंड सेकंड वाज आर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो डिमांड पुट फॉरवर्ड कर रहा था कि हमें चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर है वो सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये दोनों ही डिमांड्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं बेसिकली। यहाँ पे बीच का सोल्यूशन लेके आते हैं कि पहली बात तो जो 2 आइडियाज था 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान अलग तो बना नहीं था। पाकिस्तान का जो पार्टीशन होता है वो तो माउंटबेटन प्लान के बाद होता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑफ 1947। तो इसीलिए जो आइडिया था कि हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसकी डिमांड कैंसिल करी जाती है। यहाँ पे एक स्कीम लेके आते हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, आप अपना खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद क्या होता है। नाउ ब्रिटिशर्स हैज डिसाइडेड कि हम ब्रिटेन से किसके पास पावर ट्रांसफर कर देंगे, इंडिया के पावर ट्रांसफर कर देंगे। नाउ इमेजिन करो कि एक कंपनी का कोई ओल्ड ओनर जा रहा है और न्यू मैनेजमेंट अभी फुली टेक ओवर नहीं कर सकती, तो जो टेम्पररी एक ट्रांजिशनल मैनेजमेंट बनाई जाती है ना, एग्जैक्टली वही थी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट होती है जो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से पहले इंडियंस ने बनाई थी। इसके अंदर ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में एक ट्रांजिशन फेज हैंडल करती है, जिसके अंदर डेली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके लिए ग्राउंड वर्क कैसे प्रिपेयर होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करी जाती है। मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश रूल खत्म भी हो रहा है और फुल इंडियन गवर्नमेंट अभी कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुई है, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज था, जैसे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब दोनों के बीच का जो फेज होता है ना, ट्रांसलूसेंट फेज, वही फेज है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट। इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड था, हेड वाज द वाइसरी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इंडिया के अंदर उस टाइम गवर्नर जनरल था। इसके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इनका रोल क्या था, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप समझोगे तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है ना, सेम रोल वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हैंडल कर रहे थे। इसके अलावा क्या कर रहे थे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री को भी हैंडल कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्री और ओवरऑल लीडरशिप को हैंडल कर रहे थे। जो हमारे लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीग से, ही वॉज हैंडलिंग द फाइनेंस। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी ना, उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो पावर थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि बजट अगर कंट्रोल में रहा तो हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कंट्रोल के अंदर रहेगा। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैंडल कर रहे थे। जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा पटेल साहब के अंडर था। इसी लीडरशिप की वजह से उनको बाद में आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया था, बिकॉज उन्होंने पूरी इंडिया को यूनाइट करा था। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ही वॉज हैंडलिंग फूड एंड एग्रीकल्चर। इंडिया के अंदर उस टाइम फूड शॉर्टेजेस थे और पार्टीशन की टेंशन फेस कर रहे थे, तो इसीलिए ये जो फूड और एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री थी ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ही वॉज हैंडलिंग द लॉ।
ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज जितना भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, वो साइमल्टेनियसली हमारे जोगिंदर नाथ मंडल ही प्रिपेयर कर रहे थे। जो बलदेव सिंह थे, ही वॉज हैंडलिंग द डिफेंस। इस टाइम पे जो कम्युनिकल टेंशन थी वो काफी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही थी, इसीलिए डिफेंस ऐसे पर्सन को देने का डिसीजन लिया गया था हु इज ऑलरेडी हैविंग सम रूट्स फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। इन्होंने इंडिया को गवर्न करा था फ्रॉम सितंबर 1946 टू अगस्त 15 अगस्त ऑफ 1947। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे थी। तो सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमने बनाई थी इलेक्शंस के बेसिस पे बनाई थी। इन इलेक्शंस में हमने क्या करा था, नॉमिनेट करा था पर्सन को। मतलब जो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, जो हमारी प्रोविजनल असेंबलीज थी, एक सीट दी गई थी 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर। मतलब 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी, उस 10 लाख की पॉपुलेशन पे हमारे पास एक बंदा खड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो हमारे पास जो ब्रिटिश इंडिया थी, उस ब्रिटिश इंडिया से हमारे पास 296 पर्सन आए थे। वेरस जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स ने अपना जो हेड ऑफ द स्टेट था, जो भी उनका राजा वगैरह थे, उन्होंने एक नॉमिनी को भेजा था। पार्टीशन से पहले हमारे पास टोटल 389 सीट्स थी। पार्टीशन के बाद क्या होता है, पार्टीशन होता है जून 1947 के अंदर, जिसके अंदर बाद में क्या होता है, ये जो सीट्स होती हैं 389 से 299 के अंदर ड्रॉप डाउन हो जाती है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया था पाकिस्तान असेंबली के, और जितना भी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था वो सारा का सारा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शिफ्ट हो गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट कि मीटिंग्स हुई कैसे, तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो हमारी होती है दिसंबर 1946 के अंदर शुरुआत करी जाती है। 9 दिसंबर वॉज द फर्स्ट डे जिस दिन मीटिंग होती है। इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा था बिकॉज तब तक जो पाकिस्तान की पार्टीशन की डिमांड थी वो फुलफिल नहीं करी गई थी। दैट्स व्हाई दिस वाज द रीजन कि मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट करा था। इसके अलावा काफी प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनीज थे वो भी नहीं आए थे। अब यहाँ पे हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी कैबिनेट बैठी है उसके अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा, ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। उस बेसिस पे हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट करा था एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकंड मीटिंग कंडक्ट करी जाती है 11 दिसंबर को, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन करा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को हमने एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था। इसके अलावा हमारे पास दो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। दीज टू वर द वाइस प्रेसिडेंट। और जो हमारे बी एन राव थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। बी एन राव सर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था बिकॉज इन्होंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अक्रॉस द वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही स्टडी करे थे। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा कैसे होने वाला है, फ्रेमवर्क कैसे होने वाला है, जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो हमारा स्केलेटन है, सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसा होने वाला है वो बताया था बी एन राव सर ने। उसके बाद 13 दिसंबर को विजन आता है, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आज का जो मॉडिफाइड प्रियम्बल है, दिस वाज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें फिलॉसफी बता दी थी कि किस फिलॉसफी के ऊपर हम काम करने वाले हैं, क्या हमारे आइडियाज होने वाले हैं, और हमारा जो फ्यूचर इंडिया होगा उसके लिए हमारे पास क्या क्या विजन होंगे। तो यही बाद में प्रियम्बल बनता है, जिसको पहले प्रपोज करा गया था 13 दिसंबर को, और बाद में ये अडॉप्ट करा जाता है 22 जनवरी 1947 को। अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जैसे आज के टाइम पे हमारा जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर एक हमारे पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ कमिटीज भी होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। सिमिलरली हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी सेम चीज करी थी। हमारे पास अलग अलग कमिटीज थी, तो डिफरेंट कम्युनिटीज बनाई गई थी। सबसे पहली जो कम्युनिटी थी वो जवाहरलाल नेहरू वाज हैंडलिंग 3 कमिटीज। इसके अंदर हमारे पास यूनियन पावर्स कमेटी आ रही थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था, और स्टेट कमेटी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज हैंडलिंग द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइजरी ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी मतलब इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसने शेप करा था ना, वो फेडरल स्ट्रक्चर तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने शेप करने वाली कमिटीज को हेड कर रहे थे। वेरएज जो इंटीग्रेशन का था और जो हमारा पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो इंटरनल स्ट्रक्चर कौन डील कर रहा था, सरदार पटेल सर डील कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज हैंडलिंग द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी एंड द स्टेयरिंग कमेटी। मतलब कि हमारी किस टाइम कौन सी मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करने वाली है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है। जैसे जो गाड़ी का स्टेयरिंग जिसके हाथ में होता है वही डिसाइड करता है ना कि अब हमें किस तरफ चलना है। सिमिलरली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी वही स्टेयरिंग कमेटी थी जो सारी की सारी चीजों को हैंडल आउट करते थे, ताकि स्मूथली हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी फंक्शनिंग को एग्जीक्यूट कर सके।
इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन था, हुआ सर चेयरमैन एंड ऑल। तो ये स्टैब्लिश होती है अगस्त 29 1947 को। इसके जो चेयरमैन थे, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके अंदर हमारे जो मेंबर्स थे वो थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, T.D. कृष्णमाचारी जिनको बाद में रिप्लेस करा था D.P. खेतान ने बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, N. माधव राव जिसको B.L. मित्तर ने रिप्लेस करा था बाद में बिकॉज ऑफ डेथ, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ही वॉज ये सारे वो 7 मेंबर्स थे जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सर थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। नाउ अब बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ था और एनफोर्स कब हुआ था। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, अडॉप्शन और एनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है। अडॉप्शन का मतलब जिस दिन एनेक्ट करा गया था, मतलब हमने कुछ आर्टिकल्स को तो हमारा बनकर तैयार हो चुका था, हमने कुछ को लागू कर दिया गया था। और एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि पूरा तरीके से किस दिन लागू करा गया था, दैट मीन्स एनफोर्समेंट। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था नवंबर 26 1949 को, जिसको हम एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो इसके अंदर इसको अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर दिया गया था। वेयर एज 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा था, एनफोर्स करा था। मतलब पूरा का पूरा जो उस टाइम हमारे पास 365 आर्टिकल्स थे, जो 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए थे, पूरा फुली एनफोर्स कर दिया गया था। इसके अंदर हमारे पास टोटल 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन करा था। 24 जनवरी को फाइनल साइनिंग होती है जिसके अंदर 284 मेंबर्स ने साइन करा था। एंड 26 जनवरी को हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग दिस ऑन 26 जनवरी, बिकॉज 1930 के अंदर जो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन लाहौर सेशन के अंदर, तो उसी पूर्ण स्वराज डे की इंपॉर्टेंस को मानते हुए हमने डेट चूज करी थी जनवरी 26। क्लियर यहां तक। यस मैम। अब आगे देखते हैं कि उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या था। तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल प्रेजेंट था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था। प्रेजेंट डे हमारे पास 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं कि पार्ट्स क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, एंड इसके अलावा आर्टिकल्स क्या होता है। कोई कुछ बोल रहा है। तो हमारे पास पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो चैप्टर्स होते हैं। मतलब एक जब अगर हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं ना, इफ यू आर स्टडिंग सम नोवेल, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरी नोवेल को कुछ पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं, उसके बाद उसके अंदर और फर्दर कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो पार्ट्स तो हमारे हो गए, चैप्टर्स हो गए। और जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे कुछ स्पेसिफिक रूल्स और क्लॉजेस होते हैं। जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं ये लिस्ट और टेबल्स होती है जिसके अंदर हमारे पास नेम ऑफ द स्टेट, मतलब इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन जो आते हैं वो हमारे शेड्यूल्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि ये जो हमारी 12,000 पेजेस की किताब है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो हमने इसको लिविंग डॉक्यूमेंट किस लिए बोला, जैसे इमेजिन अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज ही नहीं होता तो हम कभी भी पंचायती राज नहीं आता, हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं आता, एंटी डिफेक्शन लॉज नहीं आते, जीएसटी सिस्टम कभी पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और स्टेबल भी है। मतलब ये लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं, हम काफी सारे इसके प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, चेंज नहीं हो सकते। कि हमारी मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है लेकिन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू जैसे जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं, इन कोर प्रिंसिपल्स को क्या नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मतलब हमारी बॉडी तो चेंज हो सकती है लेकिन हमारी आत्मा चेंज नहीं हो सकती। कभी सुनी है ये वाली फिलॉसफी कि हमारी सोल फिक्स रहती है, हम सिर्फ जो सोल होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चली जाती है। यस मैम। तो वही चीज है यहाँ पे कि हम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजों को चेंज करेंगे।
नाउ कमिंग टू द वो 12 स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्केड्यूल होता है हमारा टेरिटरीज। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि 12 स्केड्यूल्स के अंदर क्या होता है। जो हमारा बैच होगा उसके अंदर क्लास होगी, उसके अंदर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इन स्केड्यूल्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, कौन से प्रोविजन मेंशन है। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज फर्स्ट स्केड्यूल इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मतलब इस शेड्यूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, स्टेट्स का नाम क्या होगा, यूटीज का नाम क्या होगा, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या होगी, मतलब हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप होगा वो आता है हमारे स्केड्यूल 1 में। स्केड्यूल 2 के अंदर हम सैलरीज के बारे, मतलब हमने देश बना दिया है, उस देश के अंदर लोग, उस देश के अंदर हम क्या लेके आएंगे, हम लोग लेके आएंगे। उन लोगों को हम क्या सैलरी देने वाले हैं, उन सैलरी की बात करते हैं स्केड्यूल 2 के अंदर। स्केड्यूल 2 के अंदर हम अगर हम उनको कुछ सैलरी सैलरी दे रहे हैं तो उनको हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आती है वो हम स्केड्यूल 3 के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्केड्यूल नंबर 4, जिसके अंदर हम राज्यसभा की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, राज्यसभा की जो सीट एलोकेशन होती है कि किस स्टेट को कितनी ज्यादा सीट मिलेगी, जिसके अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है उसको क्या मिलेंगी, ज्यादा सीट मिलेगी। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्केड्यूल, जिसके अंदर हम शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करते हैं। ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा जितने भी रीजन बचते हैं ना, उन तक के शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। सिक्स आता है हमारा ट्राइबल एरिया, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में। देन आता है हमारा सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर हम डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। डिवीजन ऑफ पावर के अंदर क्या होता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगे, और ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसके ऊपर ये दोनों मिलकर डिसीजन लेने वाले हैं। एट्थ में हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर, अब इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स कल्चर है, अब अपनी क्लास से ही अपन देख सकते हैं कि जैसे महेश सेड इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि मुझे मैम हिंदी समझ नहीं आती है। महेश जो समझाया वो समझ आया, बिकॉज मैंने लैंग्वेज को मिक्स ही रखा है। आई थिंक ही इज नॉट देयर इन द सेशन। तो इसके अंदर हम जो एट शेड्यूल होता है, इसके अंदर हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमने रिकॉग्नाइज करी, जिसके अंदर 14 लैंग्वेजेस है, बाद में शिफ्ट होकर 22 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। कुछ हमने फर्दर एडिशंस करे थे, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली लैंग्वेज। नाइन्थ में हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये जो नाइन्थ शेड्यूल है ये हमारा पहला अमेंडमेंट करा गया था, जिसके अंदर हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा था इन द ईयर ऑफ 1951। टेंथ आता है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड करा था। 11 टॉक्स अबाउट द पंचायती राज एंड 12 टॉक्स अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज। नाउ अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली हैंड रिटन है, इटैलिक स्टाइल के अंदर, जिसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसके अलावा जो उसको डेकोरेट करा गया था वो शांति निकेतन से जो आर्टिस्ट बुलाए थे हमने, जिसके अंदर नंदलाल बोस ने इसे डेकोरेट करा गया था। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक सिंबल होता है, हर एक मिनिस्ट्री का अपना खुद का एक लोगो होता है। सिमिलरली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका भी एक सिंबल था। वो सिंबल जो हमने सील यूज करी थी वो हमने यूज करी थी एलिफेंट की। हमने जो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था वो जुलाई 22 1947 को अडॉप्ट करा था। अब यहाँ पे हम पार्टीशन के बाद अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, बिकॉज जो पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला है वो 3 जून को माउंटबेटन प्लान के बाद डिसाइड हो जाता है। नेशनल एंथम और जो नेशनल सॉन्ग है वो अडॉप्ट करे थे जनवरी 24 1950 को। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? मैम हाँ पूछो। मैम आ गया रिजल्ट सीडीएस का भी। बता दो रिजल्ट। मैम हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अब एसएसबी की क्लासेस शुरू कर दो तुम। यस मैम आई। सो डेमो सेशन के अंदर ही आप रिजल्ट देख सकते हो। आई एम हैविंग वन स्टूडेंट who has joined this demo class from the previous batch and he has cleared his examination. And he has one more thing which I want to tell, he has only taken the batch of the GS. फर्दर चले। Shall I move ahead? यस मैम।
क्या होता है कि हमने 1947 के अंदर जो 15 अगस्त 1947 है उसके अंदर हमारी जो इंडिया क्या होता है न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था और पूरी दुनिया देख रही थी अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने इतना इम्पॉसिबल चैलेंज था कि हमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक ऐसी कंट्री जिसको कैसे गवर्न किया जाना है जहाँ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट है, लैंग्वेजेस हैं, इन सबको कैसे हम इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का कल्चर अलग है, कहीं पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कहीं पे अर्बन एलाइट्स है, कहीं पुअर फार्मर्स हैं। तो एक सिंगल रूल बुक हम कैसे बनाएं जो सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। तो ये हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन था। इसी के लिए हमारे पास हमारे जो उस टाइम के जो लीडर्स थे, हु इज फ्रॉम जियोमी 2201, स्टॉप यूजिंग पेन। तो इसी का सोल्यूशन क्या आता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं ये एक यूनिक स्ट्रक्चरल ब्लेंड लेकर आते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे व्हील को री इन्वेंट नहीं करा कि हम पॉइंट जीरो से बनाएंगे, ऐसा नहीं करा। इन्होंने क्या करा, उस टाइम की जो स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज थी उन स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज के अंदर क्या हुआ, उन सबको अच्छे से स्टडी करा। उन सबको स्टडी करते हुए वहां से हर एक जगह से अपना अपना कॉन्सेप्ट उठाते हुए कि हमें हमारी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके बेसिस पे हमने एक इंडिया के लिए सूटेबल होम बनाया जो इंडिया को सूट कर सके। अब ये समझते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये कॉपी पेस्ट वाला जॉब था या फिर हमने इसके अंदर हमने कोर क्यूरेशन करा था। इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। मतलब बेसिकली हम इंडिया के जितने भी बोरोड फीचर्स हैं उन बोरोड फीचर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली 1950 के अंदर हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स और 1 प्रेम्बल था। इसके अलावा 22 पार्ट्स भी प्रेजेंट थे। एट प्रेजेंट हमारे पास 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं। अब ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसने इंश्योर करा था कि हमें मैसिव डाइवर्सिटी के अंदर हर एक एस्पेक्ट को कॉडिफाई करते हुए हमने इक्वालिटी मेंटेन करी थी। दोनों पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल इसके अंदर प्रेजेंट रहे थे। इसके अलावा इसको कंस्ट्रक्ट करने में हमें जो टाइम लगा था वो लगा था 2 years 11 मंथ एंड 18 days का। इसके अंदर डिबेट्स हुए थे। टोटल जो सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो 11 सेशंस हुए थे। 12वें सेशन के अंदर हमने क्या करा था, साइन करे थे, जो फाइनल साइनिंग करी गई थी और अडॉप्ट करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर यहां तक? यस मैम। लेट्स मूव अहेड कि हमने कौन से नेशन से क्या क्या चीजें क्या करी थी, वो करी थी, दिस बोरो करी थी। सबसे पहले हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। जो हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ से हमने पिलर्स ऑफ लिबर्टी और जुडिशरी के पिलर्स लिए थे, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये बेडरॉक था हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम का, बिल ऑफ राइट्स इसके अंदर लेके आए थे। जैसे कि मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये था कि ये जो हमारे सिटीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, सारे के सारे स्टेट पावरफुल नहीं बन सकते हैं। इसमें हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है इसके अंदर जस्ट इमेजिन कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा अनफेयर लॉ बना दे जिसमें अंदर लॉ बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिटीजन एकदम हेल्पलेस हो जाए, तो सिटीजन हेल्पलेस ना हो, इसीलिए आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर पावर होती है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर क्या होता है, जो जजेस हैं गवर्नमेंट के सर्वेंट्स नहीं होते यहाँ पे, वो एक इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि फियरलेस जजमेंट दे सके और पॉलिटिकल प्रेशर में आके कुछ भी ऐसी वैसी जजमेंट ना दे वो जो कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के फेवर में चले जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यूज करा था। तो हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल का, वो हमने कहाँ से लिया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। लेकिन जो प्रियम्बल का लिखने का तरीका है, जैसे हमने वी द पीपल ऑफ द स्टार्ट करते हैं और कब अडॉप्ट करा गया, वो सारी जो मेंशन करते हैं, लिखने का जो स्टाइल है वो हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने हमारे प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट,
प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होगा आर्म फोर्सेस का, और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ये सारी की सारी चीजें अपन ने कहाँ से ली है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हु इज फ्रॉम द नेम ऑफ ASEE? प्लीज क्लास को अटेंड कर लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हाइट बोर्ड ओवर हेयर। नेक्स्ट आता है यूके। ब्रिटिश फ्रेमवर्क से हमने क्या क्या चीजें ली? यहाँ से हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके पास रियल पावर होगी। प्रेसिडेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड होगा। ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप की, एक सिंगल नेशन है, सिंगल आइडेंटिटी रहेगी, कोई भी स्टेट्स की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर प्रोसीजर्स जो होंगे वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हम पुट फॉरवर्ड करेंगे कि पहले बिल पास होगा, बिल पास के बाद दोनों हाउसेज एग्री करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, देन वो एक एक्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल टूल्स। इंस्टीट्यूशनल टूल्स और पार्लियामेंट्री टूल्स के अंदर हमारा कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गया जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बाय कैमरलिज्म के हमारे पास अपर हाउस एंड लोअर हाउस होंगे, और जो स्पीकर का ऑफिस है, ये कुछ और चीजें हैं जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम कॉन्सेप्ट लेकर आए क्वासी फेडरलिज्म का, मतलब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी होगी एज वेल एज हमारे पास क्या होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट भी होगी। हमारे जो स्टेट होंगे उनके पास भी कुछ पावर होगी। ये पावर फ्लो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में मूव होती रहेगी, तो इसी को हम बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। इसके अलावा कुछ रेसिडरी पावर्स होंगे, मतलब कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं होंगी। वो पावर किसके पास जाएंगी? फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी। गवर्नर का अपॉइंटमेंट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये सारी चीजें हम कनाडा गवर्नमेंट से लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहां पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। जॉइंट सेटिंग का, अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है तो जॉइंट सेटिंग होगी। ट्रेड और कॉमर्स की, फ्री ट्रेड इंडिया के अंदर इंश्योर करें हमें, बिटवीन स्टेट्स और विद इन द कंट्री फ्री ट्रेड रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हम DPSP का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। USSR से आता है, वहां से हम फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, आइडियल्स ऑफ जस्टिस और प्लानिंग कमीशन लेकर आते हैं। फ्रांस से हम लेकर आए हैं रिपब्लिक, जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट हमारा जो होगा वो इलेक्ट होगा। इसके अलावा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। ये आइडियाज हम फ्रांस से लेकर आते हैं। जर्मनी से हम फंडामेंटल इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये हम लेकर आते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को डर था अगर इंस्टेबिलिटी या वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए तब क्या हो, इसीलिए हम जर्मनी से ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसीजर और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन का प्रोसीजर लेकर आए हैं, कि अमेंडमेंट मतलब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का कॉम्बिनेशन, और राज्यसभा का इलेक्शन मेंबर जिसके अंदर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट आता है जापान जैसे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लेकर आते हैं। मूविंग अहेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो हमारा, अब एक चीज यहाँ पे फैक्ट है कि आयरलैंड से अगर हमने जो DPSP का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, इनिशियली आयरलैंड ने भी इसको स्पेन से बोरो करा था और हमने आयरलैंड से बोरो करा है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 50% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली हमने इसी एक्ट से अडॉप्ट करा है, जिसके अंदर फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे की सारी चीजें हम कहाँ से लेके आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर आते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा इतने देर से अपन देख रहे हैं कि हमने कहाँ से क्या उठाया। ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब ये पार्शियली अमेंडेड कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। फ्लेक्सिबल साइड क्या होता है कि पार्लियामेंट काफी आर्टिकल्स को अडेप्ट चेंज कर सकता है, टाइम टू टाइम चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने आर्टिकल 21(1)(a) को ऐड करा था। इसके अलावा हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? फिक्स रखेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फेडरलिज्म हो गया, इन सबको चेंज नहीं करने वाले हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज रहेगा, लेकिन इसके बाहर जो कॉइलिंग है, इस कॉइलिंग को हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। मतलब हम वॉल्स बदल सकते हैं, लेकिन हम फाउंडेशन पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने बैलेंस ऑफ पावर रखी है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी के अंदर, कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए।
वो पीपल ऑफ द विल को रिप्रेजेंट कर सकता है। वेयर एज ये जो पार्लियामेंट ने जितने भी लॉज बना दिए, ये सारे के सारे जुडिशियल सुपरमेसी रहेगी। ये गार्जियन होगा हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये पूरे के पूरे को चेक कर सकता है। मतलब हमारे पास किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसके ये कंपोनेंट्स है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। इंडियन जुडिशरी और भी डिटेल के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि इसके अंदर रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात हम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी टुडेज डेमो क्लास, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की स्टार्ट करी है। डिड यू लाइक दिस सेशन? और अगर कुछ डाउट्स हैं तो नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। नो मैम, कोई डाउट नहीं। व्हाट अबाउट अदर्स? Ma'am, when is a person eligible to write NDA, ma'am? What? Ma'am, like what is eligibility to write NDA? 16 and a half to 19, 18 and a half. Like from your date of birth, you can check out. Ma'am, my date of birth is 27 March 2010. अभी तो काफी अटेम्प्ट है तुम्हारे पास। When you can give your first ND attempt when you will be in your 12th standard in September 1. Like next year, in April you will come to your 12th, and in September you can give your 12th this ND attempt, that is going to be your eligible attempt. Okay, ma'am. Anyone else? क्या किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी बैच और समथिंग? अब आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए गाइड कर देंगे। हाँ वो मैं तुम्हें कर दूंगी। Ma'am, is there in More Academy, ma'am, is there any other separate course for SSB, ma'am? Yes, there are courses BOCC, BOAC and AOCC. Oh, okay, ma'am. Ma'am, like sir will put a message when before the class, like 1 week before the 1 week before the class starts. Yes. Okay. Ma'am, there's no direct class, only online class. Yes, there are only online classes in Ashmore Academy. So I request all of you to put to give No, approximately when will the next class, ma'am? which about for the personality or about you're talking about the demo classes? Like BOCC will start from 12th May, ma'am. Then the AOCC or Okay, AOCC अभी शुरू हुआ है 2 or 3 days back, and जो आपका बस BOCC है, वन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of May, और हर मंथ हमारे पास न्यू BOAC कोर्स लॉन्च होता है। okay, ma'am. किसी और को कुछ पूछना है? नो मैम। So I request all of you, those who have watched the session, can give their feedback in the comment section. I'll just put a message for the feedback, and you can present your feedback in that comment section. Jai Hind. जय हिंद मैम।